Hey everyone, welcome back to my channel. Today's lecture is a rapid revision session from Biochemistry Unit 1. We are starting one of the most scoring topic under biochemistry, which is carbohydrate. In this lecture, I will quickly go through only the most important exam focused point. Um, Today we will revise basics of biochemistry, definition, classification, stereoisomers, including epimers, anomers, derived sugars like sugar acid, sugar alcohol, deoxy sugar, amino sugars, reducing and non-reducing sugars. Then we will see lipids like fatty acid and complex lipids. Let's begin with the carbohydrates. Carbohydrate. So, what are carbohydrates? Carbohydrates are most abundant molecules. These are most abundant molecules. These are compound of carbon, hydrogen and oxygen. Their general formula is CnH2nOn. The hydrated form of carbon is CnH2O N, and chemically they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone like aldoses और कीटोज इन जैसे एल्डोजेस क्या होते हैं ग्लूकोज हो गए कीटोजेस में आते हैं फ्रक्टोज हो गए कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स second one is oligosaccharide and third one is polysaccharide. Monosaccharides are simple sugar and these are like free aldehyde or these have free aldehyde or keto group. These are the most simplest sugars, including carbon 3 to 9. Oligosaccharides are sugars that contain 2 to 20 sugar residues. Polysaccharides are sugars that contain more than 20 sugar residues. Oligosaccharides are linked by non-glycosidic or ether bond. Glycans, what are glycans? Glycans are oligos plus polysaccharides. Is known as glycans. They have covalent bond like O-glycosidic bond. Monosaccharides are triose if there are three carbon, four carbon are tetrose, five carbons are pentose, hexose have six carbons, heptose seven carbon, octose eight carbon, and nanos nine carbon. Triose, tetrose, pentose, and hexose. These are most common. Triose. Triose are glyceraldehyde and dihydroxy acetone.
Glyceraldehydes are chiral compounds and dihydroxyacetone are non-chiral. And these are dihydroxyacetones are non-enantiomers. We will discuss later what are enantiomers in stereoisomers. These are based on the orientation of OH group. And then trios, after trios, there are tetrose having 4 carbon, tetrose, but tetrose are erythrose or triose. These are aldoses and erythrulose is ketose. This one is ketose and this one is aldose. Now moving to the pentose part. Pentose having 5 carbon. This is 4 carbon and this one is 3 carbon. 5 carbon example is ribose, xylose, arabinose. These are aldoses and xylulose is ketose. Now hexoses having 6 carbon, glucose, galactose and mannose. These are aldoses and fructose is ketose. इसको फ्रक्टोज को लेवुलोज भी बोलते हैं. Now moving to the next topic is stereoisomers. Stereoisomers. Stereoisomers are Stereoisomers are having the same molecular formula and connectivity but differ in the 3D spatial arrangement of the atoms. Same, same molecular formula and different 3D spatial arrangement. Spatial arrangement. They have at least one chiral carbon, which is asymmetric carbon. Stereoisomers are further categorized into diastereomers, diastereo, diastereomers, and enantiomers. Enantiomers. What are diastereomers and enantiomers? Diastereomers are non-mirror images. Non-mirror images.
Enantiomers are mirror images. Mirror images, but not superimposable. Non-superimposable. Non-superimposable. They are like D and L form. And stereomers are further divided into geometrical isomers and epimers. Geometrical isomers are cis or transform, and epimers are those which change at single chiral carbon. Change of change at single chiral carbon. If epimers are in cyclic form, they are anomers. Anomers are like alpha and beta. Alpha, beta form, alpha form. Alpha form is alpha form is when OH group down to the plane, and beta is when OH group is above plane. ये साइक्लिक फॉर्म होगा तो एनोमर बनेगा. अब ईपीमर्स जो होंगे, ईपीमर्स में अलग अलग आएंगे. जैसे क्या आते हैं, डी मैनोज, डी मैनोज, डी एलोज, डी गैलेक्टोज. इसमें आते हैं डी मैनोज, डी एलोज एंड डी गैलेक्टोज. डी मैनोज में C2 पे डिफरेंस होगा, डी एलोज में C3 पे, डी गैलेक्टोज में C4 पे. देखते हैं इनैंसियोमर्स. इनैंसियोमर्स को डिस्कस करेंगे. ये डायस्टेरोमर्स हो गए सारे. इनैंसियोमर्स डी और एल फॉर्म. तो इनैंसियोमर्स में मिरर इमेजेस बनता है. इसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म बनेगा. जैसे डी फॉर्म में OH ग्रुप को देखेंगे कि किस साइड है. डी फॉर्म में OH ग्रुप राइट साइड पे होगा और एल फॉर्म में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा. तो अब देखते हैं इनैंसियोमर्स. इनैंसियोमर्स में सबसे पहले इसमें डी और एल होता है, उसके साथ आर और एस नॉमेनक्लेचर भी होता है. जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो ये CHO है, ये C है, ये OH है, H है और CH2 OH है. ये एक बेसिक एग्जांपल है. और इसका मिरर इमेज बनेगा, CHO COH H CH2OH.
ये मिरर इमेज तो है पर नॉन इम्पोजिबल, मतलब इसको उठा के इधर रखे तो एकदम एग्जैक्ट उसके ऊपर कॉपी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसकी वजह से। डिफरेंस कहाँ पे? ये OH ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे है, इसमें लेफ्ट साइड पे। तो जो राइट साइड पे होगा वो बन जाएगा डी फॉर्म, जिसमें लेफ्ट साइड पे होगा वो बनेगा एल फॉर्म। अब इसमें तो कायरल कार्बन एक है, दोनों में ही एक कायरल कार्बन है। अगर दोनों में कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन कायरल सेंटर, तब क्या करेंगे? कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि लुक एट लास्ट कार्बन एंड पेनल्टीमेट कार्बन एंड लुक एट द फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर वाला कायरल कार्बन। अब कंपेयर करेंगे दोनों डी और एल, एल को। अब कैसे? देखो इसका एग्जांपल ले लेंगे। इसका एग्जांपल जैसे ग्लूकोज में है, ग्लूकोज इसका अच्छा एग्जांपल। सी ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच एच, सी ओ एच एच और CH2 OH। अब इसमें लोकेट कर लेते हैं OH कहाँ कहाँ है। यहाँ OH है, यहाँ है। कायरल कार्बन कितने हो गए? इसके पास एक H है, ये अलग ग्रुप है। ये एक हो गए, ये दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, चार हो गए। तो अब सबसे पहले क्या था, क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे लास्ट कायरल कार्बन, मतलब ये वाला देखेंगे। लास्ट वाला कायरल कार्बन देखेंगे या सबसे दूर वाला? तो हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे सबसे दूर देखेंगे, तो ये सबसे दूर है। तो इसमें क्या है? इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे, तो ये कौन सा बन गया? ये हो गया डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब अगर R और S जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे होता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3, C, Cl, H, CH, Cl, CH3। अब ये जो एग्जांपल है, अब इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। CH3, CH, Cl, CH, Cl एंड CH3। अब इसको कैसे देखते हैं? जो R है, R होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो वो R कन्फर्मेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो S कन्फर्मेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ऑर्डर है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा और एंड करेंगे लोएस्ट एटॉमिक नंबर से। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे Cl है, Cl हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, Cl और H और C कार्बन में। तो Cl को 1 नंबर देंगे, फिर आएगा कार्बन, कार्बन को 2 नंबर देंगे, फिर H आएगा, H को 3 नंबर में देंगे। अब रोटेशन को देखेंगे, रोटेशन किस तरह से हो रहा है। तो रोटेशन इसमें हो रहा है ऐसे, इसमें रोटेशन हो रहा है ऐसे, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब नीचे वाले को भी देखेंगे, नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में नंबरिंग करेंगे, वही सेम चीज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसमें रोटेशन कैसे है? इसमें रोटेशन है ऐसे,
ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये एस होगा, ये हो जाएगा एस। और इस वाले में देखेंगे ये तो ये 1 2 और 3, तो इसका रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, ये हो गया आर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लें तो उसमें थोड़ा सा एक क्या प्रॉब्लम आता है, देखो एच है, सी है, सी एल है, सी एच थ्री है, सी है, सी एल है, जिसमें दोनों ही सी एल एक साइड में हो, सी एच थ्री है, तो इसका अगर रोटेशन देखें, सी एल को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, यहाँ पे भी 1 देंगे, 2 देंगे और ये 3 देंगे, इसका रोटेशन कैसे हो गया, इसका रोटेशन हो गया ऐसे, इसका रोटेशन हो गया ऐसे, तो दोनों कैंसल आउट कर लेंगे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। इसमें भी ऐसे हो रहा है। अब जितने भी ज्यादातर सुगर्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, वो सारे सुगर होते हैं डी फॉर्म के, और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली वो एल फॉर्म के होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये जो शुगर का डी फॉर्म है वो स्टेबल है, और अमीनो एसिड का एल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके डी फॉर्म से। अब जो डी और एल है वो इंडिकेट करता है कि ऐसा कन्फिग्रेशन जो एसिमेट्रिक कार्बन में हो रहा है। ये प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा, मतलब कि ये दे डू नॉट इंडिकेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किस डिग्री में रोटेट होंगे वो डी और एल फॉर्म बिल्कुल नहीं बता सकता। तो enantiomers have the same physical property except for the direction in which they rotate polarized light, मतलब जो एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, और एक जो होता है जो स्मॉल डी और स्मॉल एल से डिनोट करते हैं वो बताता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन की डिग्री को, मतलब कितना डिग्री रोटेट होगा। अब डायस्टीरियोमर्स देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, ये इनैंसियोमर्स देखा, अब देखते हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स या फिर डायस्टीरियो आइसोमर्स, वही सेम चीज होती है। अब ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट वन और मोर बट नॉट ऑफ द इक्विवेलेंट स्टीरियो सेंटर, मतलब इसमें नॉन मिरर इमेज बनेगा, और इसमें जो डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा वो कैसे डिफर करेगा ये देखते हैं। मेन हमें फोकस करना है एनोमर्स पे, एनोमर्स पे और इनैंसियोमर्स पे, ईपीमर्स पे। तो हमने इनैंसियोमर देख लिया, डी और एल फॉर्म जो होता है इनैंसियोमर में, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, जिसमें डिग्री ऑफ रोटेशन की भी बात करते हैं।
इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट होता है। जो इनैंसियोमर्स है, इनैंसियोमर्स में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इसका होता है +52 डिग्री रोटेशन और इसका होता है -52 डिग्री रोटेशन। और डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया, डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज, इसका होगा -92 डिग्री, इसका होगा +92 डिग्री। डायस्टीरियोमर्स हम देख रहे थे, तो डायस्टीरियोमर्स में हम क्या देखेंगे आगे कि जो इसमें एग्जाम्पल आते हैं, डायस्टीरियोमर दो चीज में डिवाइड होता है, एक ईपीमर्स में, एक एनोमर्स में। सबसे पहले ईपीमर्स, ईमर्स डायस्टीरियोमर्स का है मतलब कि चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन 3D स्पेस एट वन और मोर chiral carbon but not at all chiral carbon। तो अब ईपीमर्स क्या है? ईपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन asymmetric carbon of इनर। तो ईपीमर्स होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक chiral कार्बन पे चेंज आए, उसको बोलते हैं ईपीमर्स। तो ईपीमर्स का एग्जाम्पल होगा या तो अल्फा फॉर्म होगा या बीटा फॉर्म। तो इसमें आता है, इसमें ईपीमर्स में, सॉरी, अल्फा और बीटा फॉर्म तो एनोमर्स में होता है, ईपीमर्स में होता है डी मैनोज, डी मैनोज, डी एलोज और डी गैलेक्टोज, ये तीन पूछते हैं। तो ये तीनों जो एपीमर है ये ग्लूकोज का है। जैसे डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, इसका जो अलग अलग फॉर्म होता है, एक होता है डी मैनोज, जो इसको C2 एपीमर बोलते हैं। दूसरा पूछते हैं कि डी एलोस, ये C3 एपीमर है। और तीसरा है डी गैलेक्टोज, C4 एपीमर। जो डी सॉरी तो जो डी ग्लूकोज है, इसका अलग अलग फॉर्म होता है। अगर डी ग्लूकोज ग्लूकोज के C2 कार्बन पे चेंज आए तो वो हो जाएगा कि डी मैनोज, और अगर C3 पे आए तो वो होता है डी एलोस, और C4 पे आए तो वो होता है डी गैलेक्टोज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बाद देखेंगे।